கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आपका सहयोग जो बराबर मिल रहा है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद. और जो भी सुन रहे हैं और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बांटें, शेयर करें. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठावें. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के विशारद उत्तरायण परीक्षार्थियों की सहायता कर उन पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राचीन पद्य पुस्तक में से जो कुछ भी प्राचीन पद्य के अंश में दिए गए हैं उनका हम अवलोकन कर रहे हैं. इस दृष्टि से आज कबीरदास के कुछ दोहे हम पढ़ने वाले हैं. आशा है कि आपको पसंद आएगा. और कल भी उन्हीं का कुछ अंश हमने देखा था, आज बाकी अंश देख रहे हैं. सुनिए और अध्ययन कीजिए और फ़ायदा उठाइए. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा மந்திராசனுடைய விஷாரத் உத்தரா தேர்வுவிடும் மாணவர்களுக்காக அவருடைய பாடப்பகுதியிலே பிராச்சீன் பத் சங்கர் என்ற நூலுடைய சிறு பகுதியாக கபீர் கே தோஹே, அதாவது சாக்கி என்ற தலைப்பில் அவர்கள் அழைத்திருக்கிறார்கள். அந்த சாக்கில் இருந்து சில பகுதிகள் அமைச்சுக்கு காண இருக்கிறோம். நேற்றும் கண்டோம், இன்றைக்கும் காண இருக்கிறோம். அதன்படி चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह. चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह. जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहबशाह. जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहबशाह. ஆசையே அழிவுக்கு அடிப்படை என்றார் மகாத்மா கௌதம் புத்தர். புத்தர் கூறினார், ஆசையே அழிவுக்கு அடையாளம், அழிவின் ஆரம்பம் என்றார். மண்ணாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை. பெண் ஆசையால் தன்னுடைய அனைத்தும் இருந்தும் கல்வி, செல்வம், வளம், ஞானம், விஷயம் அனைத்தும் இருந்தும் பேர் கிட்டு போனான் ராவணன். அதுபோல் எத்தனையோ மன்னர்கள் மண் ஆசையால், ராஜ்யத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையால் தன்னுடைய பெருமையை, புகழை இழந்தவர்கள் அநேகம் பேர். அதுபோல ஆசைதான் நம்முடைய அழிவுக்கு காரணமாகிறது. அதுவும் கூட தகுதிக்கு மீறி ஆசை என்பது இன்னும் கூட பேரழிவை உண்டாக்குகிறது. ஆகவே எவனாலும் ஆசையை ஒழித்தானோ அவன்தான் மகான், அவன்தான் சக்கரவர்த்தி என்கிறார் கபீர்தாசர். சாஹ கயி சிந்தா மிட்டி. ஆசை போய்விட்டதா, கவலையும் அழிந்து விட்டது. மிட்டி விட்டு கை தூர் ஹோ கயி. சாஹ கயி ஆசை போயிடுச்சா, சிந்தா மிட்டி கவலையும் அழிந்து விட்டது. மிகப்பெரிய வைர வியாபாரியான பட்டணத்தறிகள் தான் தன்னுடைய மகனால் அவருக்கு ஞானம் பிறந்தது. ஆகவே அனைத்தையும் துறந்து அவர் துறவியானார். இடையிலே மட்டும் ஒரு ஆடை கட்டிக்கொண்டு மேலே ஆடைவும் இல்லாமல் அவர் சுற்றி அலைந்தார். அவரை பார்ப்பதற்காக அந்த நாட்டு மன்னன் சென்றான். அப்படி ஒரு காட்டிலே ஒரு மண்டபத்திலே அமர்ந்திருந்தார். அவரை பார்க்க சென்றான் அந்த மன்னன் குலோத்துங்க சோழன். அப்படி பார்க்க சென்ற பொழுது அவன் அவரை வேண்டினான். நின்று கொண்டே பேசினான். அவர்கள் எல்லோரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். அவர் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். அவரை பார்த்து அந்த மன்னன் கேட்டான், அடிகளாரே, நீங்கள் ஏன் எல்லாவற்றையும் இழந்து துறந்து, இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை, இருக்கின்றது, நீங்கள் வைர வியாபாரி, மூட்டை மூட்டையாக வைர வீட்டில் கிடக்கிறது, இருந்தும் அனைத்தையும் இழந்து விட்டு நீங்கள் இங்கே வந்துவிட்டீர்களே, இது சரியில்லையே. நீங்கள்
பழைய நிலைக்கு வாருங்கள் என்று அவருக்கு அட்வைஸ் சொல்லும்போது சொல்றார், இதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மை என்ன என்று கேட்டார் மன்னர். அதற்கு உடனே அவர் சொன்னார், காதிருந்த ஊசியும் வாராது கான் கடைவழிக்கே. காதிருந்த ஊசி கூட நாம் போகின்ற பொழுது காசையே வராது. அதான் கவியரசர் பாடினார், வீடு வரை உறவு, வீதி வரை மனைவி, காடு வரை பிள்ளை, கடைசி வரை யாரோ என்று பாடினார். அதுபோல காதிருந்த ஊசியும் வாராது கான் கடைவழிக்கே என்ற நிலை இருக்கின்ற பொழுது நாம் எல்லாவற்றையும் வைத்திருந்தான் என்ன செய்ய போகின்றேன், ஆகவே துறந்து விட்டேன் என்றார். உடனே அவர் கேட்டார், இதனால் தங்களுக்கு கிடைத்த நன்மை என்ன, லாபம் என்ன என்று கேட்கிறார் மன்னர். அதுக்கு உடனே சொன்னார் அவர், மன்னனாகிய நீங்கள் நின்று கொண்டு பேசுகிறீர்கள், துறவியாகி நான் அனைத்தையும் இழந்த ஒன்றும் இல்லாத வெறும் கந்தலை மட்டும் இடையிலே அனுமதிக்கின்ற நான் அமர்ந்து பேசுகிறேன், இதுதான் வித்தியாசம் சொன்னார். உடனே மன்னனுக்கு அப்படியே ஷாக் ஆகிவிட்டது, அதிர்ச்சியாக ஆகிவிட்டவருக்கு. உடனே அவர் தன்னை தலைவணங்கி ஏற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பி சென்று விட்டார். அவர்தான் பிற்காலத்திலே பத்ரகிரியா என்ற பெயரோடு இவருடைய சீடராக ஆனார் என்பது வரலாறு. இப்படி ஆசையை இவன் விட்டுழைக்கின்றானோ அவன்தான் மன்னனுங்கிறார். சாகை சிந்தா மிட்டி மனுவா பேபர்வா, மனம் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல். இப்போ நாளை பற்றி சிந்திக்கிறவன் இன்றைக்கு கவலைப்படுவான், நாளைக்கு என்ன சமையல் செய்யலாம், நாளைக்கு என்ன கறி சமைக்கலாம், என்ன பொரியல் செய்யலாம் என்று இன்றைக்கு கவலைப்பட்டால் அதை தேடுவதற்கான முயற்சியிலே ஈடுபட வேண்டும், கவலைப்பட வேண்டும். ஆனால் நாளை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் என்று இருந்தால் அவருக்கு அன்றைக்கு கவலை இருக்காது. அதுபோல சாகை चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, मन बेपरवाह है, किसी के बारे में चिंता नहीं करता मन. ஆசை போய்விட்டால் கவலையும் போய்விட்டது. நம்முடைய மனம் பேபர்வா, பர்வா பேபர்வா, கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கும், போய் கூட இதற்கு கவலைப்படாமல் இருக்கும். சரி, மீன் சொல்கிறார், और कहते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते, सोई वही शाहनशाह, वही बादशाह है. அவர்தான் மன்னருக்கெல்லாம் மன்னர், மாமன்னர், சக்கரவர்த்தி என்கிறார். யாருக்கு எதுவுமே வேண்டாமோ அவர்தான் சக்கரவர்த்தி. ஆகவே ஆசையை ஒழித்தவனே அழித்தவனே மகானாகிறான். மாவீரன் அலெக்சாண்டர் உலகத்தையே வெல்ல புறப்பட்டு வந்தார். ஆனால் வென்றார். ஆனால் திரும்பி ஊருக்கு போகின்ற போது அதை அவர் வென்றதை அனுபவிக்க முடியவில்லை. போகின்ற வழியிலேயே அவர் உடல்நலம் குன்றி மறைந்தார். அப்படி அவர் மறையும் முன்னர் சொன்னாராமா, மந்திரிகளே, என்னுடைய நண்பர்களே, தோழர்களே, நான் இறக்கும்போது என்னுடைய 2 கைகளையும் வெளியே காட்டி குதைகின்றாராம். கல்லறையிலே என்னை கொண்டு போகின்ற பொழுது சவப்பெட்டிக்கு வெளியே என் 2 கைகளும் இப்படி வெறுத்து முடிக்கணும் என்று சொன்னாராம். இது என்னுடைய கடைசி ஆசை, இதை நீங்கள் நிறைவேற்றி விடாக என்றாராம். அப்பொழுது எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், என்னவென்று. இறுதியில் ஒருவர் கேட்டுவிட்டார், ஐயா மன்னா, நீங்கள் இவ்வாறு ஏன் கூறுகிறீர்கள்? அதற்கு அவர் சொன்னாராம், மக்களே, மந்திரிகளே, நான் வரும்போது கையிலே எதுவும் கொண்டு வரவில்லை. நான் வரும்போது கையிலே எதுவுமே கொண்டு வரவில்லை. இதோ போகும்போதும் நான் எதையுமே கொண்டு போகவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டத்தான் இந்த ஏற்பாடு என்றாராமா அலெக்சாண்டர். அதுபோல நாம் வரும்பொழுது எதையுமே கொண்டு வருவதில்லை, போகும்பொழுதும் எதையுமே கொண்டு போவதில்லை. ஆகையால்தான் பற்றத்தார் கூறினார், காதலிருந்த ஊசியும் வாராது கான் கடைவழிக்கே. நம்ம இடையிலே உள்ள அந்த அரைஞான் கயிறுகளவா, அதை கூட கற்பட்டு தான் இருக்கிறாங்க. உதைக்கின்ற பொழுது அதையும் விடமாட்டார்கள், அதையும் அறுத்து விட்டு தான் அனுப்புவார்கள். ஆகவே நாம் வரும்பொழுதும் எதுவுமே கொண்டு வருவது கிடையாது,
போகும்போதும் எதையுமே கொண்டு போவது கிடையாது. ஆகையால் தான் அலெக்சாண்டர் அவர்கள் தன் இரு கரங்களையும் நீட்டியபடி ஓப்பனாக இருக்கும்படி சொல்லி மறைந்தாராம். அவ்வாறு चाहते चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। आपने सुना होगा एम्पर अलेक्जेंडर मरते समय अपने मंत्रियों से बोले, क्या बोले, मेरे मरने के बाद जब उसमें वो पेटी में बंद करेंगे मेरे शव को, उस समय मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल के ऐसे ही रखिए, खोल के रखिए और ऐसे ही ले जाइए। मेरे दोनों हाथ बाहर रहे, मेरे पूरा शरीर अंदर रहे। सबको आश्चर्य था, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वे बोले, मैं जब आया था उस समय हाथ में कुछ नहीं लाया, अब मैं जब जा रहा हूँ तो भी साथ हाथ में कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, खाली हाथ आया और खाली हाथ लौट रहा हूँ। ये समझाने के लिए मैंने ऐसा कहा। ये कितना बड़ा सिद्धांत है, कितना बड़ा उपदेश है, संदेश है हम लोगों के लिए। इसलिए हम जब आते हैं तो कुछ नहीं लाते, जब हम लौटते हैं तो कुछ नहीं ले जाते। इसलिए जिन लोगों ने चाव को मिटा दिया, चिंता को मिटा दिया, सोई साहंशा। जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहंशा। उसके बाद दूसरा, ये पहला दुआ क्या है? इच्छा को बंद करो, इच्छा को अपने काबू में रखो, मनதை கட்டுப்படுத்து என்ற கருத்து। दूसरा है संतोष की महिमा, संतोष की महिमा जो है उससे संतुष्ट रहो, इतना मिला है संतुष्ट रहो। रुका सुखा खाए के கவியரசர் பாடுவார், கடலளவு கிடைத்தாலும் மயங்க மாட்டேன், அது கையளவே ஆனாலும் கலங்க மாட்டேன்। கடலளவு கிடைத்தாலும் மயங்க மாட்டேன், அது கையளவே ஆனாலும் கலங்க மாட்டேன்। உள்ளத்திலே உள்ளதுதான் உலகம் கண்ணா, உள்ளத்திலே உள்ளதுதான் உலகம் கண்ணா, இதை உணர்ந்து கொண்டேன் துன்பமெல்லாம் விலகும் கண்ணா, இதை உணர்ந்து கொண்டேன் துன்பமெல்லாம் விலகும் கண்ணா। ஆகவே திருப்தி என்ற ஒரு செல்லம் வந்து விட்டால் நமக்கு எல்லாமே அந்த மாதிரி। तुलसीदास ने कहा, गोधन गजन बाजीदन और रतन धन खान, गोधन गजन बाजीदन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन दोधी समान। जब आवत संतोष धन सब धन दोधी समान। वही संदेश को यहाँ कविता कहते हैं, क्या है? रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीओ। हमारे घर में जो रोटी है वो बासी है, पुरानी है, कल की है, परसों की पकाई हुई है, वो सूख गई है, लेकिन हमारे घर में है, अपने घर में है तो उसे खा लो। अगर वो नहीं हो, वो भी अगर नहीं रही तो क्या है? ठंडा पानी पियो, पानी पीकर संतुष्ट रहो, क्योंकि हमारे घर में वही है। लेकिन पड़ोसी नेबर जो है क्या करता है? घी से रोटी बनाता है, उसकी बू हमारे सांसों में आती है, हमें लुभाती है कि तुम ले लो मांगो और खाओ करके लुभाती है। वो हमें नहीं चाहिए। देखी बिरानी चूपड़ी, बिरानी என்றால் पड़ोसी, அண்டை வீட்டுக்காரன் நெய்யினால் चपाती செய்கிறான், घी की बनी चूपड़ी, घी की बनी रोटी मत ललचावे जीव। हर जीवधारी को उसके ऊपर लालच नहीं करनी चाहिए। ஆஹா, கொஞ்சம் கொடுத்தா பரவாயில்லையே சாப்பிடலாமா என்று ஆசைப்படக்கூடாது। அதான் சொன்னால் பேராசை பெருநஷ்டம் என்றார்। इसलिए जब आवत संतोष धन, हमारे घर में जो है बासी रोटी है, पुरानी है, सूखी है, कोई बात नहीं, खा लो। अगर वो भी नहीं है तो ठंडा पानी घर में है ना, तो पी लो और संतुष्ट रहो, सैटिस्फाइड रहो। क्योंकि पड़ोसी जो घी की रोटी बनाता है उसको देख करके मन में ललचाना नहीं, मत ललचावे जीव।
ये की बिरानी चूप पड़ी मत ललचावे जीव। पड़ोसी की घी की बनी रोटी के ऊपर हमें लालच नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या संदेश है? संतोष की महिमा बताते हैं कबीरदास। और दूसरा तीसरा, मांगन गए मरी रहे, मरे जो मांगन जाए, उठते पगले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। उनके पगले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। मांगन गए मरी रहे, जो भूखों मरते हैं, जो भूखों मरते हैं वे क्या चाहते हैं? हम भूखों मर रहे हैं, कहीं अड़ोस पड़ोस में गली गली जाकर भीख मांगे और खाएं। ये जो भाव है वो बुरा है, क्योंकि वो मरने के समान है। मांगन गए मरे रहे, मरे जो मांगन जाही। जो मांगने के लिए जाते हैं वे मरे हुए माने जाते हैं। जो किसी मांगने जाते हैं वे मरे हुए मांगे जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था दशावतार में विष्णु ने अवतार लिया था, वामन अवतार। उस वामन अवतार में महाराजा बलि के पास गए और उनसे भिक्षा मांगी, याचना की, भिक्षा मांगी। क्या मांगी? छोटे बच्चे ग्रुप में गए, विष्णु ग्रुप में गए। छोटा बच्चा, उसका पैर इतना ही था, उसके पैर छोटे छोटे पाँव थे उसके। वे बोले मेरे पाँव छोटे हैं, मैं पाँव रखूँगा उतनी जमीन दीजिए। इतना पाँव मैं 3 स्टेप रखूँगा, 3 कदम रखूँगा, उतनी जमीन दे दीजिए। लेकिन महाबली भी जब मांगने गए तो छोटे हो गए। यही उसका संदेश है, भाव यही है। जो मांगने जाते हैं छोटे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी क्या करते हैं? मांगने के लिए जाने वाले मरे हुए माने जाते हैं। क्या छोटे नहीं, शव हो जाते हैं। கேட்க போகிறவர்கள் அவர் பிணமாக மாறிவிடுகிறார்கள்। சரி, அப்படி பிணமாக மாறி போகிற அளவா शव के समान मरे हुए जाते हैं ना, उनको देख करके जिसके दिल में दया नहीं आती, அவர்களை பார்த்து யாருடைய மனதிலே இரக்கம் வரவில்லையோ, दया नहीं आती, करुणा नहीं होती, वे उसके पगले मरे। उनसे पगले वे मुए, मुए मतलब मर गए मानिए। जिनमुख निकसत नाही, जिस मुंह से எந்த வாயிலிருந்து நகி இல்லையப்பா போப்பா என்ற வார்த்தை வருகிறதோ அவன் இவனுக்கு मुन्नाले இருந்தவனாகிறான்। யாருக்கு मुन्नाले? बेगर के पहले ही मरा हुआ माना जाता है। जो भीख मांगने जाता है ऑलरेडी शी वाज डाइड, बट जिसके मुंह से ना नो 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 की आवाज आती है तो वो उसके पहले मरा हुआ माना जाता है। இப்படி தன்னையே அடித்துக்கொண்டு தான் தன்னை ஒரு நடிப்படமாக மாற்றிக்கொண்டு எவன் ஒருவன் பிச்சை எடுக்க போகின்றானோ அவனை பார்த்து இறக்கப்படாமல் இல்லைப்பா போப்பா என்று எவன் சொல்கிறானோ அவன் இவனுக்கு முன்னாலே இருந்தவனாக கருதப்படுகிறான்। தமிழில் ஒரு சுழல் உண்டு, இறப்பதும் இறப்பது நன்று, இறப்பது பெரியரா போடணும், இறப்பதும் சின்னரா போடணும், இறப்பதிலும் இறப்பது நன்று, பிச்சை கேட்பதை விட உயிர் விடுவது மேல் என்பார்। इसलिए उनके पगले वे मुए जिनमुख निकसत नाही, इसके मुंह से नहीं, चले जाओ यहाँ से, नहीं है मेरे पास नहीं, இல்லப்பா போப்பா என்று யாருடைய வாயிலிருந்து வருகிறதோ அவன் இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு முன்பாகவே இறந்தவனாக கருதப்படுகிறான்। आगे यहाँ पर क्या कहते हैं? भीख मांगना बुरा है। जो भीख मांगने आता है उसके लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, वो ना देना भी बुरा है, वो इससे बढ़कर बुरा है। ये जो बुरा होता है मरा हुआ माना जाता है। इसी प्रकार नहीं कहने वाला उससे पहले ही मरा हुआ माना जाता है। इसलिए यहाँ पर कबीर का संदेश है कि भीख मांगना बुरा है। भीख मांगने वाले को कुछ ना देना भी बुरा है, उससे बड़ा बुरा है।
அதிகம் கேட்டதுங்கிறார். அவையார் பாடுவார், கொடுது கொடுது முருகன் கேட்கிறார். அவையாரை வந்து பார்த்து கேட்கிறார், கொடுது கொடியது என்ன? அப்போ அவையார் சொல்கிறார், கொடுது கொடுது வறுமை वरुமை கொடுது, गरीबी बड़ी बुरी चीज है. अच्छा, अव्यार कहते हैं, मुर्गा से कहते हैं वरुமை கொடுது. சரி, அதனும் கொடுது उससे बढ़कर बुरी चीज क्या कौन सा है? அதனும் கொடுது இளமையில் வறுமை, बचपन में गरीबी. அதனும் கொடுது उससे बुरा क्या है, बढ़कर बुरा. அதனும் கொடுது अनबिला पेंडिल, जिस स्त्री के जिस औरत के दिल में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, वो उससे ही बुरा मान जाती है. அதனும் பொழுது उससे बुरा बुरा क्या है? அவர் கையால் இங்கிற உண்பதுதானே. जो बिना प्रेम के हमें खिलाते हैं, उनके हाथ से जो खाते हैं ना, वो उससे भी बढ़कर बुरी चीज है. इसलिए गरीबी बुरी चीज है, बचपन में गरीबी उससे ही बड़ी बुरी चीज है, और उससे ही बड़ी बुरी चीज वात्सल्य के बिना रहने वाले औरतें रहने वाली औरतें, उससे बड़ी बुरी चीज है. उनके हाथ से प्रेम से जो हम खाते हैं वो उससे बड़ी बुरी है. इसलिए जो मांगना मरण समान है. क्या कहते हैं? मांगन गए मर रहे, वो मरते रहे, भूखों मरते रहे, लेकिन मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए. मरे जो मांगने जा रहे, जो उससे बढ़कर जो भीख मांगने के लिए जाते हैं, वे मरे हुए माने जाते हैं. लेकिन उनके पहले वे मर गए जिन मुख निकसत नाही, जिस मुख से ना ही शब्द आता है, वो उससे पहले मरा हुआ माना जाता है. इसलिए भीख मांगना बुरा है. भीख मांगने वाले को कुछ ना कुछ ना देना भी बुरा है. பிச்சை எடுப்பது கெடுது. அதை பிச்சை எடுப்பவர்களுக்கு ஒன்றுமே தராமல் இல்லை என்று சொல்வதும் கெடுதுதான். कोई सेम है, मांगन मरण समान है. मत 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 कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु की सीख. ये भी वही कहती है. भीख मांगना बुरा है, मांगन मरण समान है. भीख मांगना मृत्यु के बराबर है. பிச்சை எடுப்பது இறப்பதற்கு சமமாகும். भीख मांगना मरण के समान है. इसलिए मत कोई मांगो भीख. कोई भी हमें किसी भी कारण हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए. எந்த காரணத்தை மட்டும் யாரும் பிச்சை எடுக்க போகக்கூடாது, பிச்சை கேட்கக்கூடாது. சரி, மாங்கனத்தே மரணா பலா, அப்படி கேட்பதை விட சாவது மேல். मांगनते मरना भला, यही सदगुरु की सीख है, मेरे गुरुदेव की सीख है, मेरे गुरुदेव का संदेश है कि मांगन से मरना भला है, बेहतर है, बेटर है. கேட்பது என்பது யாசிப்பது என்பது இறப்புக்கு சமம். ஆகவே யாருமே பிச்சை கேட்கக்கூடாது. அப்படி பிச்சை கேட்பதை விட இறப்பதும் இறப்பதும் மேல். பிச்சை கேட்பதை விட சாவது மேல். இது என்னுடைய குருநாதர் கூறிய வார்த்தை. ஏ மேரே சத்குரு की सीख, என்னுடைய குருநாதர் கூறிய வார்த்தை. அவர் சொன்ன பாடம் இது, அவர் சொன்ன मैसेज. आगे यहाँ पर भाव क्या है? भीख मांगना बुरा है. और पांचवा, मरी जाए मांगो नहीं, वो सेम वही है. मरी जाओ मांगो नहीं, अपने तन के काज. मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने शरीर के वास्ते नहीं मांगूंगा. என்னுடைய தேவைக்காக என் உடலை காப்பதற்காக நான் யாரும் பிச்சை கேட்க மாட்டேன். मांगो नहीं मांगूंगा. अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा. என் உடலை காப்பதற்காக, என் உடலை வளர்ப்பதற்காக, என் உயிரை காப்பதற்காக நான் யாரிடம் பிச்சை எடுக்க மாட்டேன், கேட்க மாட்டேன். मरी जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज, अपने शरीर के काज के लिए, शरीर के लिए, अपने लिए मैं नहीं मांगूंगा. தனக்காக நான் எதையுமே கேட்க மாட்டேன். ஆனால் பிறருக்காக, परोपकार के लिए, जो परोपकार करते हैं, परोपकार करने के लिए दान मांगते हैं, तो उनको हमें
देना चाहिए वो मैं मांगने के लिए तैयार हूँ। मान लीजिए एक मंदिर बनाना है, एक धर्मशाला बनाना है, एक भोजनालय, मुफ्त भोजनालय बनाना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। हमारे पास जो पैसा है उससे हम खर्च करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम और भी खर्च करना चाहे तो इसके लिए परोपकार के लिए, अपने नहीं परोपकार के लिए तो उससे जाकर चंदा वसूल करना, मांगना बुरी बात नहीं है, मैं तैयार हूँ। अपने लिए भीख मांगने से मैं मरना बेहतर समझता हूँ, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए मांगना मैं लज्जा नहीं समझता, ये शर्म नहीं आती उसके लिए। परमारथ के कारण मोही ना आवे लाज, मुझे लाज नहीं आएगा, मुझे ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, मुझे अपमान मालूम नहीं होगा, अपमान महसूस नहीं होगा। मैं ये नहीं महसूस करूँगा कि ये अपमान है, भीख मांगना अपमान है, लेकिन अपने लिए अपमान है, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों परोपकार के लिए मांगना बड़ी बात नहीं है, उसमें मुझे शर्म नहीं आती। தனக்காக கேட்பது அவமானம், நான் கேட்க மாட்டேன். ஆனால் பிறருக்காக என்றால் கேட்பதற்கு எனக்கு வெட்கம் கிடையாது, எனக்கு அவமானம் கிடையாது. மோகினா அவை லாஜ், லஜ்ஜா நகி होती, நான் வெட்கப்பட மாட்டேன். ஏனென்றால் பிறருக்காக கேட்பதற்கு நாம் வெட்கப்படக்கூடாது. मेरे पिताजी कहते हैं, என்னுடைய அப்பா சொல்வார், और बस लोरामा उनसे लोग कहेंगे और के मित्र और सगे और भाई बंधु कहेंगे, सर जी, पंडित जी, आप जो चाहे जब चाहे मांगिए, हम देने के लिए तैयार हैं। जब चाहे जो चाहे आप मांगिए, आपको देने के लिए हम तैयार हैं। तो पिताजी कहा करते थे, ठीक है, मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब आके मांगूंगा। उसके बाद वे हमको उपदेश देंगे, बच्चों को देंगे, बेटो बेटो बच्चों, जो कि आपसे ऐसा कहते हैं ना, जब चाहे आइए मांगे, हम देने तैयार हैं, इतना से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद उसको उनकी बोली सुनने के बाद अगर हम उनसे मांगने जाएंगे तो आपकी महिमा घट जाएगी। उसके बाद आपसे कुछ बोलेगी भी नहीं करो, क्योंकि ये समझेंगे कि उससे बात करने से ये हमसे कुछ मांगेगा, इसलिए वहाँ तक चुप रहना चाहिए। என்னுடைய தந்தையார் என்று சொல்வார், என்னுடைய உறவுகள், சொந்தங்கள், நண்பர்கள் எல்லோரும் என்னை பார்த்து சொல்வார்கள், ஐயா சார், நீங்கள் எப்போது வேணுமானாலும் எது வேணுமானாலும் கேளுங்கள், நாங்கள் அடிக்க தயாராக இருக்கிறோம், ஆகவே நீங்கள் தயங்க வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள். அத்துடன் நம்முடைய மதிப்பு நின்றுவிடும். அதை தாண்டி ஆஹா இதுதான் கேட்க சொன்னாரே, நாமும் கேட்போமே என்று நீ கேட்டுவிட்டால் அவ்வளோதான், உன்னுடைய மரியாதை போகும். அடுத்த நாளிலிருந்து அவர்கள் உன்னிடம் பேசக்கூட மாட்டார்கள். ஏன் தெரியுமா, பேசினால் இவர் படம் கேட்பார் என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள். ஆகவே மரியாதை எது வரைக்கும் மரியாதை, ஐயா நீங்கள் கேளுங்கள் நாங்கள் தருகிறோம் என்று அளவா, அது வரைக்கும் தான் மரியாதை. அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும், அதை அப்படியே காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். हमसे कहते हैं ना, पंडित जी आप जो चाहे मांगिए, हम देने के लिए तैयार हैं, तो उसी से हमें चुप होना चाहिए। उसके आगे कुछ मांगने जाएंगे तो हमारी मान इज्जत चली जाएगी। ऐसा मेरे पिताजी का संदेश था, उपदेश था, उसी का हम आज तक पालन कर रहे हैं। अपने संतान से भी मैं नहीं मांगता, अपनी संतानों से भी मैं नहीं मांगता, मेरी बेटी बेटा ये चाहिए वो चाहिए नहीं मांगता, उनके उपदेश का मैं पालन करता आ रहा हूँ। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि जो भी बुजुर्ग हैं, आप ऐसा एक जो रास्ता है उसे अपनाइए, तो आपकी महिमा घटेगी नहीं बढ़ेगी, घटेगी नहीं बढ़ेगी।
मांगने से घटेगी, नहीं मांगने से बढ़ेगी। इसलिए परमानंद के कारण दूसरों की सेवा के लिए, मंदिर बनाने के लिए, कोई धर्मशाला स्थापित करने के लिए, कोई अन्नदान कमेटी स्थापित करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जो भी का मांगे, उसमें कोई अपमान की बात नहीं है। लेकिन अपने लिए मांगना अपमान की बात है। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, मेरे शरीर के लिए, मेरा पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लूँगा, मांगूंगा। और परमानंद के कारण दूसरों की सेवा करने के लिए अगर मुझे मांगना पड़े तो मैं मांगूंगा। एक बात है, तिरुपुर में हमने एक मंदिर बनाया था, मैंने और मेरे दोस्तों ने, परिवार ने मिल करके, मेरी अध्यक्षता में। ये इससे सबसे बड़ा करने में बड़ा गर्व होता है। वो मंदिर अनेक सालों से वो पत्थर ग्रुप में पड़ा था, वो जगह था, सब जगह थी, सब मैदान तक खुला मैदान था, वहाँ पर मंदिर की बनावट नहीं हुई थी। कितनी भी कमेटियाँ आई और सब चली गई, लेकिन किसी ने मंदिर नहीं बनवाया। जब हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर एक मकान खरीदा, तो वहाँ पर जाकर बसे, तो वहाँ के लोगों ने कहा, जी पंडित जी, ये जो मंदिर है तो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, पत्थर पत्थर ही है, इसको एक मूर्ति स्थापित करके एक मंदिर बनाकर पूजा करनी है। अभी तक किसी ने भी बहुत लोग आए लेकिन काम नहीं हुआ, आप जरा आके देखिए तो हम कृतार्थ होंगे। तो मैं गया और उसको देखा और लोगों से एक सभा बुलाई और मैंने कहा हम लोग सब मिल करके बनाएंगे। ठीक है, सबने मंजूर कर लिया। तो मैंने कहा इसके लिए पैसा चाहिए, सब गरीब हैं, वहाँ पर सब गरीब थे, मैं भी गरीब था, गरीब हूँ। उस समय मैंने कहा हम घर घर जा करके वसूल करेंगे। सप्ताह में छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, रविवार को सुबह से दोपहर तक घर घर जाएंगे और वसूल करेंगे। उसको लेकर के इकट्ठा करके जमा करके रखेंगे, बैंक में जमा करेंगे, उस पैसे से हम मंदिर बनाएंगे। ये मैंने सुझाव रखी थी। उन्होंने कहा अच्छा आप ही अध्यक्ष रहिए इस मंदिर ट्रस्ट के, देवालय के ट्रस्ट के। वो विष्णु गणपति का मंदिर था, विनायक जी का मंदिर था, गणेश जी की मंदिर थी, तो मंदिर था। तो उसके लिए उन्होंने क्या होगा कि हमने एक कमेटी बनाई, मैं उसका अध्यक्ष बना, उन्होंने बना दिया मुझे, आप ही अध्यक्ष रहिए, आपकी अध्यक्षता में ये काम ज़रूर पूरा होगा, हमें विश्वास है। इसके अनुसार हमने क्या किया, वो मंदिर बनाना शुरू किया। घर घर हर सप्ताह को हमें छुट्टी नहीं मिलती, मैं रविवार को भी मैं काम में जाता, ट्यूशन लेता, अध्यापक वर्ग चलाता और दोपहर के बाद छुट्टी मिलती मुझे। 3 बजे से रात को 10 बजे तक, 3 से 10 बजे तक घर घर जाते, उनसे कुछ जबरदस्ती मजबूर नहीं करते, आप जितना चाहे दे, जो लेके जाके जो ले, तुम जितना चाहो दे दो, हम उसको अपने आपके खाते में जमा करेंगे और वो सब मंदिर के खाते में जमा हो जाएगा। इस प्रकार जमा करके उस मंदिर को बनाया, उसका कुंभाभिषेक भी किया। अब भी वो मंदिर है, चल रहा है। इसका नाम है राजक गणपति टेम्पल। आज भी है, तिरुपुर में है, पांड्य नगर में है, श्रीनगर में है, वो भी आज से चालू है। अभी उस मंदिर का क्या है, बढ़ गया, बड़ा हो गया, उसको देख वहाँ के रहने वाले सब उसको देखो। इसी प्रकार हमें देखा देखी उस मंदिर को अभी विशाल मंदिर बन गया है। तो कारण यह है कि वो भीख मांगने के लिए हमें जाने में लज्जा महसूस होती है, लेकिन अपने लिए भीख मांगने में लज्जा महसूस होती है। परोपकार के लिए भीख मांगने में हमें लज्जा महसूस नहीं होना चाहिए। தனக்காக கேட்பதற்கு நாம் வெட்கப்பட வேண்டும், அவமானப்பட வேண்டும். ஆனால் பிறருக்காக, பிறர் நன்மைக்காக, மக்கள் உதவிக்காக நாம் கேட்பதிலே எந்த விதமான அவமானமோ இடுக்கோ கிடையாது என்பது இந்திய கதிரவுடைய சொற்கள். அதுக்காக தான் சொன்னேன், நான் என்னை பற்றி अपने स्व प्रशंसा के लिए मैंने नहीं कही, नहीं कहा।
एक उदाहरण रूप में मैंने कहा, क्योंकि भीख मांग के अपने जो जो लेके जाते थे, घर घर जाते थे, जितना चाहो दो, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो चाहे दे रहे हम ले लेंगे, आपके खाते में जमा करेंगे। हमने खाता बही खोल लिया, उसमें लिख के आए नंबर, नाम, डोर नंबर लिख के करते रहे। अंत में वो काम पूरा हुआ, कुंभाभिषेक हुआ, अभी चालू है, उम्र भी चालू है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है। इसलिए दूसरों की सेवा के लिए मांगने के लिए जाना लज्जा की बात नहीं है। பெருடுக்காக நாம் அடுத்தவர் நன்மைக்காக கேட்க போகும்போது நமக்கு அவமானம் அல்ல, அது நமக்கு வெகுமானம்தான் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து। मरी जाऊं मांगो नहीं अपने धन के कारण, मेरे अपने लिए नहीं, लेकिन परमार्थ के कारण मोहि ना आवे लाज। के बाद शिष्ट छठा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, मावी सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए पल हो। उसकी यही कहानी है, यही इसी घटना का मुझे उल्लेख करना चाहता हूँ। धीरे धीरे बनाइए, बहुत बड़ी संपत्ति चाहिए। मंदिर बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 रुपया 2 रुपया करके वसूल किया, धीरे 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 वसूल किया। जितना वसूल हुआ उतना काम हुआ, वसूल हुआ काम हुआ, वसूल हुआ काम हुआ। ऐसे ऐसे बड़ा तो एक एक ईंट रखने से बड़ा महल हो गया। एक एक ईंट रखा हमने, तो बाद में बड़ा मंदिर हो गया, बन गया, अब तक चालू है। मैंने अपने हाथों से उस मंदिर की प्रतिष्ठापना की थी। सुना है गणेश जी की मूर्ति की मैंने अपने हाथों से प्रतिष्ठापना की थी, प्रतिष्ठा की थी। इसका मुझे गर्व है, भगवान ने तो ये मौका दिया, गणेश जी ने, ये मेरे लिए गौरव की बात है। इस प्रकार धीरे धीरे वो काम हुआ, इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे कीजिए, हो जाएगा। एक एक स्टेप आगे बढ़िए, ऊपर चढ़ जाएंगे। 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान है, इसके लिए सीढ़ियाँ हैं। एक एक सीढ़ी पर रखिए, 1 2 3 4 ऐसे एक एक सीढ़ी कदम रख जाइए तो आगे बढ़ जाएंगे। 3 அடுக்கு மாடி என்ன போகணும், என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எடுத்து வையுங்கள், ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வையுங்கள், மேலே போயிடலாம்। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। उदाहरण के लिए एक माली है, गार्डनर है, तोटाकार का, वो एक फूल का पौधा या फल का पौधा रखता है, गमले में पीछे अमरूद का पेड़ है, पौधा रखता है, उसके लिए पानी देता है। कहाँ पानी देगा वो, मूल के देगा, जड़ के लिए देगा, வேருக்கு நீருட்டுவான், வேருக்கு நீரூற்றி வளர்க்கின்ற தலைவாய் என்று பாடுவார் கவியரசர்। ஆக வேருக்கு நீரூட்டுவான், माली सींचे 100 घड़ा, चाहे 100 घड़ा पानी दे फिर भी वो पेड़ कब फल देगा, ऋतु आने पर ही फल देगा, ऋतु के आने पर ही फल देगा। ऋतु आए फल हो, जब वसंत ऋतु आएगा, अभी वसंत ऋतु आने वाला है, तभी वो फल देगा। अभी श्रावण के बाद वसंत ऋतु है, तभी वो फल। अभी देखिए आम कोपरे निकले हैं, छोटे छोटे आम, वो अमरूद के अच्छे फल निकले हैं पेड़ में, अमरूद के पेड़ में, इसलिए वो अगले महीने में फूलेगा, फलेगा, फलेगा। इस प्रकार धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। 100 घड़ा पानी अगर दे तो भी ऋतु के आने पर ही वो पेड़ फल देगा, तुरंत नहीं फल देगा। इसलिए हमें अपना काम करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। एक साथ 10 स्टेप, एक साथ 10 सीढ़ी हम लांग नहीं कर सकते, लांगने पर नीचे गिर पड़ेंगे। इसलिए एक एक सीढ़ी पर चलते जाइए। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। एक एक सीढ़ी पार करने से ऊपर मंजिल तक पहुंच सकते हैं, चाहे 2 मंजिला हो, 3 मंजिला हो, वो दिखता नहीं। एक एक सब पार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए कबीरदास का संदेश है। उनका संदेश क्या है, एक एक करके आप काम कीजिए,
बड़ा बन जाएगा। और पहला क्या है, चिंता का मूल कारण चाह है, इच्छा है, इच्छा को छोड़नी चाहिए। दूसरा है क्या है, वही संतोष की महिमा हमारे घर में, अपने घर में इतना है, उससे हमें संतुष्ट होनी चाहिए। और तीसरा है भीख मांगना बुरा है, भीख मांगने वाले को कुछ भी नहीं देना भी बुरा है। और सच वो चौथा है, मेरे गुरु ने मुझे बताया है, भीख मांगने से पहले मर जाओ, भीख मांगने से मर जाना बेहतर है। पांचवा है, अपने लिए भीख मांगना लज्जाजनक बात है, परमात्मा के लिए भीख मांगना गौरव की बात है। अपने लिए भीख मांगना लज्जाजनक बात है, अपमान की बात है। तनक्काக கேட்பது அது அவமானம். அதே நேரத்தில் பிறருக்காக மக்கள் நன்மைக்காக பிச்சை எடுப்பது அது गौरव की बात है। எனக்கு அங்கே அவமானம் வராது, मोहिनावे அது அடுத்தது क्या है, जो भी काम हो एक एक करके कीजिए, धीरे धीरे कीजिए तो काम हो जाएगा। इस प्रकार चाहे 100 गड़ा पानी दें पेड़ को, तो ऋतु के आने पर ही वो पेड़ फल देगा, इसके पहले हमें फल देगा ना देगा। इसी प्रकार हमें हर काम को धीरे धीरे करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास का संदेश है, उसे हम अपने जीवन में उसका पालन करें और आगे बढ़े। यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है। एक बार फिर, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सोई सहर्षा। रुका सुखा खाए के ठंडा पानी पीव, देखी बिरानी छू पड़ी मत ललचावे जीव। मांगन गए मरी रहे, मरे सो मांगन जाए, उनते पहले वे हुए जिनमुख निकसत नाही। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु की सीख। मरी जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के कारण शरीर, अपने तन के कार्य के लिए परमार्थ के कारण वही ना आवे लाज। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए पल। ये आज का पाठ है, हमने अध्ययन किया है। आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हैं, आप इसको अपने ध्यान में रख लीजिए। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए, बुलाइए, फोन कीजिए, मैं समझा लूँगा, या तो कमेंट्स में दीजिए, डालिए, मैं देख लूँगा और उसका समाधान कराऊँगा और उसका उत्तर भी आपको मैं अपनी तरफ से दूँगा। झिझकना है, किसी भी बात के लिए झिझकना नहीं। संदेह हो तो तुझसे पूछना, खुल करके पूछना, डरना नहीं, झिझक नहीं, कुछ नहीं करना, अपने आप पूछना और कहना कि मैं इसको आपको समझा दूँगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का भाषण, आज का ये वर्ग कितना वर्ग है, 68 है, 68वां वर्ग है, खत्म करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका आर सुंदरराजन, तमिलनाडु। याद रखिए, तमिलनाडु से मैं बात कर रहा हूँ। நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விடைவது தங்களுடைய தொண்டன் ஆர் சுந்தரராஜன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் தொண்டன் ஆர் சுந்தரராஜன். அதை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் என்று கூறி நாளை வரை விடைபெறுவது தங்களுடைய ஆர் சுந்தரராஜன். தன்யவாத், நன்றி, தன்யவாத், நன்றி, தன்யவாத், நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். नाम Hey.